Hello everybody. A very good morning to all of you. I am going to discuss thermodynamics, a part of physical chemistry. Now, thermodynamics is the branch of science which deals with all changes in energy or transfers of energy that accompany physical and chemical processes. Since we are confined our study for the chemical reactions or chemical processes, so this part of thermodynamics is known as chemical thermodynamics. So chemical thermodynamics is the branch of thermodynamics which deals with the study of processes in which chemical energy is involved. So basically thermo means heat, dynamics means in motion. So exchange of heat from hotter to colder बॉडी तो थर्मोडायनेमिक्स कहने का मतलब है कि सिर्फ हमें क्या यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के लिए या केमिकल एनर्जी जहां इन्वॉल्व हो उस पार्ट को पढ़ना है ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ thermodynamics. So first number one, it helps to predict whether any given reactions can occur under the given set of conditions of temperature, pressure and concentration. That is, the thermodynamics tells us about the feasibility or spontaneity of a chemical reaction. The given set of chemical reactions can take place or not. Second, it also helps in predicting the extent of reaction until the equilibrium conditions are reached. ठीक है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस को बताता है थर्ड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स फॉर एग्जांपल नास्ट इक्वेशंस क्लासिकल ब्राउन इक्वेशंस लॉ ऑफ मास एक्शन राउट्स लॉ so most of the important laws of physical chemistry can be derived from thermodynamics which we discussed in higher classes with the help of thermodynamics one can generalize the result of many different experiments so these are the some objectives or importance of thermodynamics next there are some basic terms in thermodynamics. First number one is system. So system is defined as any part of universe which is our thermodynamic consideration. That is to study the effect of temperature, pressure, etc. is known as system. For example, any reaction taking place in a test tube or beaker is a system. ठीक है कोई भी रिएक्शन हम कराते हैं टेस्ट ट्यूब में कराते हैं या बीकर में कराते हैं या कोनिकल फ्लास्क में कराते हैं तो हम सिर्फ उस टेस्ट ट्यूब बीकर या कोनिकल फ्लास्क पे अपने को फोकस करते हैं कि उसमें क्या चेंजिंग आ रहा है क्या कलर चेंज हो रहा है क्या उसका टेम्परेचर है कौन सी गैस निकल रही है किस कलर की गैस बन रही है लाइक दैट तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में कि वो एक सिस्टम है ठीक है द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग the system is confined at a definite place in space by the boundary or you can say the system and surroundings are separated by a definite boundary ठीक है overall the universe is regarded as the combination or sum of system plus surrounding so system plus surrounding is known as universe so system कहने का मतलब any part of universe which is our thermodynamic consideration जिसमें हम अपने thermodynamics study को करते हैं उसी को बोलते हैं system now type of systems basically there are three types of system depending on the exchange of energy or matter or both first number one is open system so a open system is defined as the any system which can exchange both mass and energy mass or matter and energy that is both mass and energy can be transferred from system to surrounding or surrounding to system usko bolte hain open system for example any reaction taking place in open beaker or test tube or sodium reacting with water in an open beaker open system कहने का मतलब जिसमें दोनों का एक्सचेंज होगा मास का भी और एनर्जी का भी मास मींस मैटर फॉर एग्जांपल यहाँ में डायग्राम दिखाया है देखिए रिएक्शंस करा रहे हैं तो वाटर वेपर्स है ओपन टेस्ट ट्यूब है बीकर है या कोनिकल फ्लास्क है या कोई भी कंटेनर है तो ये वाटर वेपर्स क्या होगा इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड और हीट का एक्सचेंज तो होगा ही फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम सेकंड क्लोज सिस्टम सो क्लोज कहने का मतलब a system is said to be closed when there is exchange of energy only but there is no exchange of mass from system to surrounding or surrounding to system तो close means कि बंद कर दिया ये पहले ओपन था अभी ये बंद है तो बंद होने से ये वाटर वेपर्स या एनी काइंड ऑफ गैसेस कैन नॉट बी इन्वॉल्व इनटू सराउंडिंग्स ठीक है बट हीट कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम इसको बोलते हैं ओपन क्लोज सिस्टम ठीक है सो क्लोज करने का मतलब सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा मास का या मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम सो आइसोलेटेड सिस्टम मींस when there is no exchange of mass matter or energy from system to surrounding or surrounding to system इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम सो आइसोलेटेड मींस हर सराउंडिंग से वो 100% आइसोलेटेड है मींस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट और मास फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू system. An isolated system does not produce any effect or disturbance in its
surroundings. For example, any reactions taking place in a thermos flask. थर्मस फ्लास्क हम यूज करते हैं जनरली, इसमें क्या होता है, गर्म चीज रखते हैं तो 10 घंटे 12 घंटे गर्म रहती है, तो ये एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है। गर्म इसलिए रहता है क्योंकि हीट का एक्सचेंज सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम का नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन करने का मतलब जहां में दोनों एक्सचेंज होगा, क्लोज करने का मतलब सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा। आइसोलेटेड करने का मतलब नाइदर एनर्जी नॉर मास, दोनों में से किसी का भी एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस. So physical quantity is said to be state function when its values depend only upon the states of the system, that is initial and final states. It does not depend on the path or by which this state has been attained. ठीक है, सो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा इसकी वैल्यू कि ये किस तरह से आपने कराया है, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि इनिशियली पहले कितना वैल्यू था, देन फाइनल स्टेट में कितना वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो एक्चुअली स्टेट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, आयलर्स थ्योरम बोलते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इसकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करेगा, पाथ पे या इंटरमीडिएट बेस पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मोस्टली तो थर्मोडायनामिक्स हम यहाँ पढ़ते हैं, केमिकल थर्मोडायनामिक्स में वो सब स्टेट फंक्शन होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, लाइक दैट। However, if any physical quantity which depends on the path, जो path पे डिपेंड करेगा उसको बोलते हैं path functions। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्क एंड हीट। सो वर्क किसी सिस्टम को हीट देने का दो तरीका होता है, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, तो इसको बोलते हैं पाथ फंक्शन की किस तरीके से आपने उस रिएक्शंस को या उस प्रोसेस को किया है, तो उस पर डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू, तो दैट इज नोन एज पाथ फंक्शन। सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा तो इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। ठीक है, तो सिर्फ दो ही ऐसे फंक्शन है जो पाथ फंक्शन है, वर्क एंड हीट, इनको छोड़ के बाकी मोस्टली जो भी होते हैं वो ऑल आर स्टेट फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। So properties which do not depend upon the quantity of matter present in the system or size of the system. So intensive word बना हुआ है internal, internal means वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है जो एक्सटर्नल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। So any physical quantities or properties which do not depend on the amount or matter of present in the system, इसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मोस्टली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटेंसिव होती हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट, केमिकल पोटेंशियल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ऑल दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, चाहे हम 1 लीटर पानी ले, चाहे 2 लीटर पानी ले, चाहे 10 लीटर पानी ले। ठीक है, वाटर की विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप 1 लीटर पानी लीजिए, चाहे 10 लीटर लीजिए, चाहे 20 लीटर लीजिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, कि वो उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा आपने कितना लिया है। ठीक है, वो उसकी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव मतलब इंटरनल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो वर्ड में यहाँ पे एक्सटेंसिव मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, कितना हमने उसका अमाउंट लिया है उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, जैसे 1 लीटर दूध में अगर कहें कि 2 लीटर पानी डालिए तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 3 लीटर। मास, जैसे 1 किलो आलू कर दा, 2 किलो प्याज कर दा, 1 किलो टमाटर कर दा, 10 किलो मान लीजिए चावल कर दा, सो टोटल मास। ठीक है, सो एनर्जी, तो ऑल दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब यहाँ में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जो हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स से पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो मोस्टली एक्सटेंसिव होता है, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो इंटेंसिव होती है। ये दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, मतलब दैट कैन बी एडेड लाइक अलजेब्रिक सम, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव होती है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, जैसे मास है, वॉल्यूम है, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव। एडिटिव मतलब हम उसको ऐड नहीं कर सकते। The product, sum and ratio of intensive properties are also intensive properties. ठीक है, if an extensive property is expressed per mole or per gram, it becomes intensive properties. For example, mass and volume. So mass and volume both are extensive properties, but the ratio of mass to volume, that is also known as
डेंसिटी. सो डेंसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो कोई दो अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है तो उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. तो प्रोसेस मीन्स when the thermodynamic system changes from one state, that is initial to final state, the operation is called a thermodynamic process. इसको बोलते हैं thermodynamic process. जैसे आइस निकाला फ्रीजर से तो ऑटोमेटिक क्या होगी, इसकी मेल्टिंग शुरू हो जाती है. तो आइस मतलब सॉलिड स्टेट इनिशियल, और मेल्टिंग हुआ, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, तो वो क्या हो गया, लिक्विड स्टेट. ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स for isothermal process, the process in which the temperature of the system remains constant, so delta T equal to 0. ठीक है, so in isothermal process the pressure and volume changes but temperature do not change. Now isobaric process, the iso means same, bar means pressure, so isobaric process मतलब process in which the pressure remains constant, so delta P equal to 0 और P equal to constant, उसको बोलते हैं isobaric process. For example, reaction taking place in an open system at 1 atmospheric pressure is isobaric process. Similarly, iso means same, choric मतलब volume. So when the volume of the system remains constant during various operation, this process is known as isochoric process. मतलब सिस्टम को आप स्टेट को चेंज करिए, प्रोसेस करिए, लेकिन इस तरह करिए कि उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना हो. ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सील्ड कंटेनर एंड द कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ फॉर्म कैलोरीमेट्री. यहाँ में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता. नेक्स्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब प्रोसेस व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, तो इसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. इट मींस कि हीट, देयर इज नो चेंज इन हीट, दैट इज dq इक्वल टू 0 और q इज कांस्टेंट. मतलब सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है. For example, sudden bursting of a cycle tube or compression of mixture of oil vapor and air during the compression stroke of an internal combustion engine. ये एक adiabatic process है. ठीक है, चलिए अभी तक हमने 3 आइसोथर्मल पढ़ा. आइसोथर्मल करने का मतलब जहां में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करेंगे लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा. देन आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ा. आइसोबारिक करने का मतलब कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, डेल पी इक्वल टू 0, बट टेम्परेचर और वॉल्यूम में चेंज होगा. जैसे चार्ल्स लॉ पढ़ा है. ठीक है, कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फिक्स मास ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. देन आइसोकोरिक पढ़ा. आइसोकोरिक मतलब जहां में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज होगा, तो इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. एंड देन एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस कहने का मतलब कि हीट सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं जाएगा. सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, दैट इज dq इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये नाम जहां भी आएगा अंडरस्टूड है कि आइसोथर्मल करने का मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं करना है, आइसोबारिक करने का मतलब प्रेशर में चेंज नहीं करना है, एडियाबैटिक करने का मतलब हीट में कोई एक्सचेंज नहीं होगा. ठीक है, नाउ thermodynamics is based on basically 4 laws. The first law is zeroth law of thermodynamics. So this law was proposed by Fowler. This law states that the two systems in thermal equilibrium with a third system separately are also in thermal equilibrium with each other. It means कि if just suppose A and B are in thermal equilibrium. Thermal equilibrium means there is no exchange of heat from A to B or B to A. दोनों का टेम्परेचर सेम है, thermal equilibrium करने का मतलब. And then this system B is in thermal equilibrium with another system C, means there is no exchange of heat from B to C or C to B. Then according to zeroth law of thermodynamics, A is also in thermal equilibrium with C. ठीक है, so कोई भी दो अगर सिस्टम मान लीजिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है और वो एक सेपरेटली किसी तीसरे के साथ है, तो पहला तीसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, so this is known as zeroth law of thermodynamics. So thus if a system A is in thermal equilibrium with a system B and the system B maintains thermal equilibrium with system C, then A and C are brought into contact with each other. It is observed that system A or C are also in thermal equilibrium, means essentially means कि there is no exchange of heat from system A to system C or vice versa. Essentially, two systems that are in thermodynamic equilibrium will not exchange any heat. Systems in thermodynamic equilibrium will have the same temperature. अगर कोई दो सिस्टम मान लीजिए थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मतलब किसी एक का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी एक का टेम्परेचर कम है. सो आज की वीडियो में हमने बेसिक टर्म्स को पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स को. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे और आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. थैंक यू.